Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Okay. So, continuing with our which operators, comparison operator, right? In the last session, we were discussing some examples of comparison operator, few more examples, and then we will dive into the third type of operator, that is logical operator. Okay. But before that, some few more examples of comparison. This one, the first example, square double equal to not square. Now, by seeing the output, some people might be surprised how it can happen that you are getting answer true. Getting? These are all policies of JavaScript. What happens in this case, that I'll tell you. Okay? One by one, I'll tell you. See here, when you're applying not operator on this square, okay? What it will do is it will convert this square to boolean because this is a not. Not is specially a logical operator, which we have not studied yet. In the next, it will come. So it converts this square, that is your array, into a boolean. And square, when it gets converted to boolean, it is always true. Let it be a empty array or an array with value. Understanding, guys? As it is a array, irrespective it is a empty array or it is a array with any values in it. Arrays, when converted to boolean, it is always true. Getting, guys, what I'm trying to say? Okay. So what happens is this gets converted into boolean true. When we convert it to boolean, let it be an empty array or let it be what? A array with value. And here the conversion is not string. Many think that that square will first get converted to an empty string. No, this is a Boolean value. Okay, and it is Boolean true. And true's not is false. Okay, but this side, as we are not using not operator on it, it is converted into a empty string. Here it will call toString. And empty string, understanding, it will convert it to empty string. And then that empty string will get converted to 0. And this is false. So false will also get converted to 0. And 0 double equal to 0, we get true. Getting? So always we people think what this is an empty array. So empty array means false. False not should be true. Right? No. Let the array be empty array. Let the array be array with element. Array. And array, when you convert to Boolean, array, when converted to Boolean, is always true. Array is always true when you convert it to Boolean. And यहाँ Boolean conversion होगा. यहाँ string नहीं बनेगा. ये array Boolean में convert होगा. और इसका Boolean value क्या बनेगा? True. ठीक है? And true का not क्या बनेगा? False. And false का numeric value क्या बनेगा? 0. ठीक है? हो गया. अब यहां सिर्फ एम्प्टी अरे, इस पे आप नॉट नहीं लगा रहे हो ना, तो इसको बुलियन में नहीं कन्वर्ट करेगा, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट. एम्प्टी स्ट्रिंग बिकम्स false and false to 0. Understanding? And then 0 double equal to 0 is 0 double equal to 0. Yes, we get true. That is the rule, and I'll give you that explanation. एंड सेकेंड केस में ट्रू क्यों है? क्योंकि ये अभी जस्ट नाउ बताया स्क्वायर है, तो इसका पहले स्ट्रिंग बनेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग व्हेन कन्वर्टेड टू बुलियन इट बिकम्स फॉल्स, राइट? एंड देन फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, इट बिकम्स ट्रू. ये पार्ट फॉल्स बनने वाला है क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा.
एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का बुलियन कन्वर्जन क्या बनता है? फॉल्स, एंड फॉल्स डबल इक्वल टू फॉल्स, देयरफॉर ट्रू। कह रहे सी। सो पहले ये समझ लो क्या हो गया यहाँ। नॉट ऑफ स्क्वायर, ये नॉट ऑफ स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर को बुलियन ही डायरेक्ट कन्वर्ट करने वाला है। जब नॉट स्क्वायर पे लगाया तो वो अरे को डायरेक्ट बुलियन बनाने, कन्वर्ट्स एम्प्टी अरे टू बुलियन ट्रू एंड देन निगेट्स इट टू फॉल्स। ये पहले पार्ट क्लियर है, मीन्स ये पहले समझ में है। अरे एम्प्टी रहने दो या अरे विथ वैल्यू रहने दो, अरे का बुलियन ये हमेशा क्या रहता है? अरे का बुलियन वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? इफ यू वांट यहां करके दिखा दूं, ठीक है? बुलियन ऑफ अरे, सी बुलियन फंक्शन है, ये बुलियन सी। इज इट ट्रू? मीन्स कहना क्या चाह रहा हूं समझ में है कि नहीं? नहीं तो थ्री इडियट वाला मूवी में वो आता है ना, तो उनका नाम अच्छा था, भट्ट या समथिंग, ही डाइड रिसेंटली इन हिज 90s। नहीं, आमिर खान was giving the definition of machine, right? And then he say कहना क्या चाहते हो, तो that type of चीज आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो, तो स्क्वायर एम्प्टी अरे है, एम्प्टी अरे का बुलियन भी ट्रू है, एंड अरे विथ वैल्यू रहने दो तो भी ट्रू है। मैंने कंक्लूजन क्या करना है? अरे का बुलियन हमेशा क्या है? ट्रू। और यहां अरे डायरेक्ट बुलियन में कन्वर्ट हुआ है, तो ये अरे का बुलियन वैल्यू क्या बना? ट्रू, एंड ट्रू का नॉट क्या बनेगा? फॉल्स। ठीक है, ये पार्ट क्लियर। फिर वो फॉल्स क्या बनने वाला है? जीरो, इसलिए लेफ्ट साइड जीरो। ठीक है, फिर ये सिर्फ स्क्वायर है, इसमें नॉट नहीं है ना, तो ये बुलियन नहीं बनेगा, ये पहले एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा। देखो, is converted to empty string, and empty string is zero, and therefore zero double equal to zero is true. Understanding, guys? Yes or no? Just confirmation Yes, दो sir. guys। Yes, yes. ठीक है, एंड सेकंड केस तो बताने की जरूरत नहीं, ये तो फॉल्स है, और ये अभी आपको पता चले ये फॉल्स तो जीरो बनने वाला है, और ये एम्प्टी अरे है, एम्प्टी अरे का क्या बनेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग टू जीरो, जीरो डबल इक्वल टू जीरो, इसलिए ट्रू आ गया। ठीक है, तो देखो यहां मैं चाहिए तो दिखा देता हूं, square double equal to not of square, still does it give true? Some weird results ना, and इसलिए ये ऐसी चीजें ही हमेशा टेक्निकल राउंड्स में पूछते हैं when you're facing interviews based on JavaScript। पक्का इंटरव्यूज में ऐसे ही कैच क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑनेस्टली ऐसे चीजों पे पकड़ेंगे जहां आपका फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं चेक किया जाता है। तो स्क्वायर डबल इक्वल टू नॉट स्क्वायर, ट्रू। किसी को देख के लगा कि कैसे हो सकता है ना, यहां स्क्वायर उसका नॉट कैसे ट्रू आ सकता है, दिस एंड दिस, बट व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज द कास्टिंग रूल ऑन बोथ साइड इज डिफरेंट। ठीक है, इस साइड डायरेक्ट ही अरे किस में कन्वर्ट हुआ? कैन एनीवन टेल मी, ये डायरेक्ट अरे किस में कन्वर्ट हुआ? Boolean. और बुलियन क्या, ट्रू या फॉल्स? Boolean true. ट्रू। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में, मैं गलती से पाइथन कभी मैं बोल दूं, जावा स्क्रिप्ट में अरे एम्प्टी रहने दो या अरे विथ वैल्यू रहे, अरे ये हमेशा बुलियन ट्रू है। अरे इज ऑलवेज, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो उसको रेफरेंस है, उसको रेफरेंस रहेगा, एम्प्टी रहने दो या विथ वैल्यू, वो ऑब्जेक्ट है, इट विल हैव अ रेफरेंस, देयरफॉर इट्स बुलियन वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू, एंड ट्रू का नॉट क्या बनता है? फॉल्स। फॉल्स का न्यूमेरिक वैल्यू क्या बनेगा? जीरो। और ये एम्प्टी स्ट्रिंग बने, यहां टू स्ट्रिंग कॉल होगा, डॉट टू स्ट्रिंग, इधर बुलियन कन्वर्जन है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्जन हुआ, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग बना, एम्प्टी स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू जीरो, जीरो डबल इक्वल टू जीरो, इसलिए ट्रू है। ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। अब यहां देखो, ट्रू डबल इक्वल टू वन, तो ट्रू विल गेट कन्वर्टेड टू वन, वन डबल इक्वल टू वन, यस, देखो ट्रू, ट्रू तो वन बन गया, बट इज वन डबल इक्वल टू टू? नो, देखो फॉल्स। बट ये थ्री इक्वल है गाइस, थ्री इक्वल में कोएर्जन नहीं होता है। कोएर्जन मीन समझा ना, कास्टिंग।
casting won't take place. It will keep the values as it is. And 3 इक्वल है तो उसको डेटा टाइप चेक करना पड़ेगा पहले, एंड दोनों का डेटा टाइप ही अलग है तो डायरेक्ट फॉल्स। गेटिंग? देखो, ट्रू डबल इक्वल टू 1 ट्रू आता है, बट ट्रू 3 इक्वल 1 फॉल्स आता है। यहां क्यों फॉल्स है? क्योंकि डेटा टाइप ही अलग है ना, एंड कोएर्जन नहीं कर रहा है, इसमें कोएर्जन कर रहा है, इसको ट्रू को पहले 1 बना रहा है, एंड 1 डबल इक्वल टू 1 है, इसलिए ट्रू आता है। प्लीज मेक ऑल द थिंग्स क्लियर। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट केस, ट्रू इज कोयर्स, कोयर्स्ड मीन समझा ना, फोर्स्ड, फोर्स्ड करना, गेटिंग, विच हैपेंस इन इंडिया। इंडिया नाउअडेज सोशल मीडिया इतना बेकार है कि इन्फ्लुएंस कोई भी और किसी में भी होता है, तो इफ योर रूट्स आर स्ट्रांग यू विल नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट और नो? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, यू ऑल आर यंग जनरेशन, सो ऐसे एक्सटर्नल चीजें आपको इन्फ्लुएंस करते रहेगी तो इन्फ्लुएंस होने का नहीं है। अपने वैल्यूज, अपने रूट्स, अपने कंट्री के बारे में ऑलवेज प्राउड होना चाहिए। सो ट्रू इज स्क्वायर्स टू 1, ये 1 बन गया, देन 1 डबल इक्वल टू 1 ट्रू, बट सेकेंड केस में ये ट्रू 1 बन गया बट 1 डबल इक्वल टू 2 नहीं है, इसलिए फॉल्स। बट ये 3 इक्वल में कोएर्जन नहीं होने वाला है, तो डेटा टाइप पहले चेक किया जाएगा, डेटा टाइप सेम है तो वैल्यू चेक किया जाएगा, डेटा टाइप भी सेम, वैल्यू भी सेम, तो ही ट्रू आएगा, राइट? क्लियर? देखो, 2 डबल इक्वल टू 2 ट्रू, एंड 2 ट्रिपल इक्वल टू 2 भी ट्रू। क्यों? क्योंकि वैल्यू भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम। ठीक है, ओके। चलो, नेक्स्ट इज अबाउट एम्प्टी स्ट्रिंग विद जीरो। सो ये दो इक्वल है तो कोएर्जन होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग विल गेट फोर्स टू कोएर्स टू जीरो, एंड जीरो डबल इक्वल टू जीरो ट्रू। 3 इक्वल है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, डायरेक्ट फॉल्स। एंड हमेशा याद रखना है जावास्क्रिप्ट में जब तक स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है वो हमेशा फॉल्स है, या फॉल्स कन्वर्टेड टू जीरो। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रहने दो या उसमें स्पेसेस रहने दो, अल्टीमेटली इट इज जीरो ओनली। गेटिंग? तो जीरो डबल इक्वल टू जीरो ट्रू। एम्प्टी स्ट्रिंग एंड स्पेस स्ट्रिंग both converted to zero. Getting? With 2 equal. And with 3 equal, they remain different. 3 equal के केस में ये string है और ये number है. And 3 equal है ना, casting नहीं करने वाला है. डेटा टाइप्स पहले चेक करेगा, तो इसका स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसका नंबर डेटा टाइप है, नंबर है। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव नंबर, वी डोंट हैव इंट, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ऐसे अलग अलग जावा जैसे डेटा टाइप्स नहीं, या स्ट्रेट अवे नंबर डेटा टाइप है। तो ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, डायरेक्टली फॉल्स। ठीक है, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, when you're comparing nan with anything is always false. Rather, nan is not equal to nan. nan खुद के साथ भी इक्वल नहीं। गेटिंग? ऐसे कॉन्सेप्ट कभी रियल लाइफ में भी देखो कि ऐसा कोई है क्या जो अपने आप से भी इक्वल नहीं है। गेटिंग? सो nan डबल इक्वल टू एनीथिंग इज ऑलवेज फॉल्स। इवन nan इज नॉट इक्वल टू nan। ठीक है, सी, nan double equal to nan is always false. You take anything is always false. Okay? And हमने लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था कि सिर्फ कौन एक दूसरे के साथ इक्वल है, null and undefined only can be equal to each other, but with equal to operator, huh? बाकी ऑपरेटर्स लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, their null gets converted to zero. इक्वालिटी ऑपरेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। लास्ट सेशन में लिया था मैंने, पॉइंट्स में से दिया था, और वहां इफ यू वांट यू विल चेक दैट स्लाइड।
I 100% I remember that. See, here it is written. Correct? Null and undefined equal to each other, but nothing else. Means equality जब check करते हो ना, double equal, not equal, double equal. उन दो केस में ही ये एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं. Null and undefined are equal. Correct? Not in any other cases. ठीक है? See. तो अभी हमने कंपैरिजन किसका किया है? नल विथ अनडिफाइंड, तो दे आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ट्रू. नल डबल इक्वल टू जीरो कैन नॉट बी. यहां कास्टिंग नहीं होगा, नल जीरो नहीं बनेगा. एंड इसलिए क्या आता है? फॉल्स. क्योंकि अभी हमने लिखा ना, अभी मैंने स्लाइड पे लेके गया दैट इन इक्वालिटी केस ओनली हु आर इक्वल टू ईच अदर. नल is equal to undefined, undefined is equal to null. No other value. कोई भी और वैल्यू ले लो, like null double equal to empty, then also false. If null and undefined, only that is true. But if you take less than operator, greater than, less than, equal, in that if null is involved, then it gets implicitly converted to zero. देखो जैसे ये इस केस में क्यों ट्रू आया? क्योंकि यर नल इज कन्वर्टेड टू जीरो एंड जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. यस, देयरफॉर ट्रू. ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक के एग्जांपल्स क्लियर रहेंगे तो आगे के बताता हूं. यस, आई Yes, नीड yes. कंफर्मेशन. नाउ मूविंग टू brace bracket. Brace bracket is not a block over here. Here it is a object. How do you represent an object in JavaScript? JavaScript में objects कैसे बनाए हमने? बनाया ना many time. Let person equal to ऐसे brace bracket. फिर लिखा था ना name colon age colon. So we create an object ना like this. कि ब्रेस ब्रैकेट में की वैल्यू इसको जेसन कंस्ट्रक्टेड है. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन which is very popular today also to communicate between a backend and a front end framework. Like backend services लिखी रहेगी Spring में या Django वेब फ्रेमवर्क में, एंड वो React में पुल करनी है. तो वो भी बैकएंड फ्रंट एंड को कैसे फेंकता है वो वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ जेसन. एंड फिर रिएक्ट या एंगुलर वो वैल्यू लेता कैसे? इन जेसन फॉर्म. करेक्ट? एंड फिर हम इसको एक्सेस करते हैं ना पर्सन डॉट नेम या पर्सन डॉट एज. करेक्ट? यू कैन इवन एक्सेस इट लाइक दिस पर्सन ऑफ नेम, स्क्वायर ब्रैकेट से भी एक्सेस. तो बताना क्या चाह रहा हूं, ब्रेस ब्रैकेट represents what? A object. So this is a empty object, but still it will create two different objects. दोनों के एड्रेसेस अलग रहेंगे. भले दोनों empty है, then also this is a different object, this is a different object. And as their references are different, double equal to gives false. Getting guys? Same thing. अभी यहाँ कास्टिंग नहीं करेगा. यहाँ कोहेजन का जरूरत क्या है? दोनों का डेटा टाइप्स वो है ना, both are object object. Therefore, directly it will take the reference, and both are having different reference. Same is the case for empty array. Empty array, empty array. अरे है, अरे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसका भी रेफरेंस है. तो इसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस डिफरेंट है. देयरफॉर इट गिव्स फॉल्स. यू कैन चेक. ठीक है? स्क्वायर डबल इक्वल टू स्क्वायर, brace bracket double equal to brace bracket. Getting? Yeah, why? Because it is directly written. One side it is taking it as a block. Okay. If I do this in console.log and then I write brace bracket double equal to brace bracket. Getting? अभी वो राउंड में लिखा तो वो सिंटैक्स एरर नहीं देता है. Why? Because here it is treating left side as a block.
empty block, and empty block है तो वो ignore हो गया. So now it has remained just double equal to this thing. Therefore, it says it is a syntax error. But when I put it in a round bracket, now they both are objects. So this object and this object references are different. And as the references are different, the answer comes false. And same is the case for array also, which I already showed you. Okay? And this thing just now we discussed. You remember, no? Just now, all the explanation I gave you, not square, as it is an array, right or no? Let it be an empty array, let it be an array with value. What is the Boolean value of an array? True. True is not as false. False number is zero, right? And here it is not Boolean. Here it is converted to string. It becomes empty string. Empty string converted to number zero. And then zero double equal to zero. Yes. Therefore, answer you get, right? And empty string with zero is true only because empty string converted to zero. Zero double equal to zero. True. Space, if the string contains space, then also true because just now I told a string with spaces is also converted to number zero. Okay? Okay. So I hope we'll proceed with the next category operator. Now this next category when get over, then we have to start with conditional statements, iterative, so that we can start writing some small applications, right or no? To write such small applications, you need to be that much eligible. ना? वो लिखने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए वो तो पहले होना चाहिए तब लिख पाओगे. ठीक है? Okay, so just give me quick confirmation. All of you should give, not one single person unmuting and all. Chalo, quickly batao. Shall we proceed with the logical operator? Or if you have doubt in the previous category, that also you can ask. Yeah, we should proceed. Yes, Okay, sir, we can proceed. sure. Chalo, ठीक है. Yes, sir. Moving to the next category, that is logical operators. Now, logical operators act like a connective. They act like a connectives. Even in 11th, 12th, if you have learned discrete maths in that one logic theory chapter we used to bear, predicates and prepositions and predicate, and we used to write like this A and B. Then truth table we used to make, then prove that whether it is tautology, prove whether it is contradiction. I don't know whether you remember or not. If you have done your mathematics is that strong. Logical operators, as I said, it acts like a connective. Means it is used to join more than one conditional expressions. And conditional expressions are made using previous category operator. Which category? Comparison. So you're having one comparison expression, A less than B or something. You're having another comparison expression, B greater than D, and then you want to join them. Then we can use this logical operators like we have and, then we have or. Okay. Then there is one unary operator also in this category. Remember, anding and oring, and or. And is having more precedence, or is having lesser. Many think that it is same. No, anding is having more precedence, oring is having lesser precedence. And above that both, there is the not operator called exclamation. Okay, so whatever expression is, it will take the complement of it. Like if this is true, it will give false. If this is false, it will give true. Okay, and this is to join to comparison, anding and or. Now, in case of anding, okay, always remember if both are true, then only the result is true. When both the expressions are true, then only the result is true. When any of them is false, the result is false. Okay. In ORing, either of them should be true.
If both are true, doesn't matter, but at least one should be true. If any one is true, the result is true. Okay? That is the rule. And one more is introduced in the later version of JavaScript. Like after ES means ES6 2015, coalesce, it is called as nullishing operator to exclamation. So I'll tell you how it works. Okay, that too I'll tell you. But before that, all these logical operators return true or false. Actually, their outcome is true or false. But in some cases, it may not. Getting? Now you'll say when. When your operands are not Boolean. If the operands, like see, A and B I'm doing, or I'm writing A or B. So if the operands of that operator, that is A and B are the operands. So if the operands are Boolean, the result is sure going to be Boolean, true or false. In this case also true or false. But if they are not Boolean, they are of different data type, getting? Then it will return any one of them. Either it will return A or B. Here also A or B. So whether A will be returned or B will be returned, what? That I'll tell you. The rules I'll tell you, but I wanted to say that normally and or not, nullishing, they return Boolean value, true or false. But in some cases it may not. When your operands are not Boolean. अगर operands Boolean नहीं है तो फिर वो जो ऑपरेंड है वही आएगा मींस ए का वैल्यू तो भी आएगा या बी का वैल्यू तो भी आएगा अंडरस्टैंडिंग क्लियर ओके फिर इनके ट्रुथ वैल्यूज कैसे होता है वो सब बताता हूं एंड दे आर इवेल्युएटेड शॉर्ट सर्किट मीनिंग इट विल नॉट डू फुल्ली इवेल्युएशन जब ऑपरेटर टॉपिक शुरू किया था तभी भी मैंने बताया था इफ यू रिमेंबर ठीक है सम operators are there where fully evaluation doesn't take place. Actually, all the operators do fully evaluation except तीन situations बताए थे. एक ये short circuit, logical and an or. Second, the ternary operator question mark colon. And third, that nullishing. Getting? If you want to recall, देखो जब हमने operator topic शुरू किया, ठीक है? See, in that especially we have mentioned that point. This whole thing depends on how attentive you are or how carefully the slides you have read. All that thing depends. See here, in the slide I have mentioned, JavaScript guarantees that all operands of an operator are fully evaluated, except one, this short circuit logical and or this nullishing coalesce. It is pronunciation is like that. Coalescing. Getting? And third is ternary operator. Question mark colon. ये तीन केसेस में ही फुल्ली इवैल्यूएशन होता नहीं या शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन बाकी सब जगह पे फुल्ली इवैल्यूएट उसका एक एग्जांपल भी दिया था जैसे ये देखो यहाँ मैंने बताया था फुल्ली ये इवैल्यूएट होगा फिर ये इवैल्यूएट एंड फिर एडिशन याद है कि नहीं याद करो गाइस ऐसे भूलते मत जाओ सैटरडे संडे आ गया तो सब वाइप आउट करते हो और मंडे एकदम खाली स्लेट की तरह आने का नहीं है सब चीजें कैरी फॉरवर्ड करनी है नहीं तो क्या होता है एट द एंड व्हेन द होल कोर्स इज ओवर एंड व्हेन यू आर रेडी फॉर इंटरव्यूज यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द ट्रेनर क्या पता क्या सिखाया है कुछ याद ही नहीं आता है तो डोंट ब्लेम टू द ट्रेनर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज नीडेड इज डिलीवर्ड टू यू आपका भी हर रोज वो ब्रशअप होना चाहिए 1 घंटे के बाद 1 घंटा तुम्हें उसके ऊपर काम करने के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए कि जो भी पढ़ा है उसको एक्सप्लोर थोड़ा रिकॉल एक्सप्लोर भी नहीं किया तो भी सिर्फ रिकॉल करना है कि हाँ ये सब चीजें सिखाया था गेटिंग अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट टेक्नोलॉजी ठीक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए अपना
We have to come to logical. ठीक है? तो already I told you logical operators are used to combine Boolean expressions. दो expressions को join. अभी ANDing में याद रखना है. ANDing. ओके कैसे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है ये बताता हूं लाइक इफ फर्स्ट इज फॉल्स द एंटायर रिजल्ट इज फॉल्स इट विल नॉट एट ऑल चेक द सेकेंड पार्ट को देखने का टाइम भी नहीं गलाएगा क्योंकि पहला ही पार्ट क्या आ चुका है फॉल्स अगर ये ट्रू है देन ओनली इट विल प्रोसीड अहेड अगर ये ट्रू आ रहा है तो ही आगे प्रोसीड करेगा बट अगर ये फॉल्स है डायरेक्ट ही फॉल्स गेटिंग एंड सेम वे ऑरिंग में याद रखना if first is true, directly true, it will not waste its time in checking the second part. क्योंकि ऑरिंग को क्या चाहिए एक ट्रू चाहिए तो अगर पहला ट्रू आया डायरेक्ट पूरा आंसर ही ट्रू अनाउंस करेगा इट विल नॉट इवन चेक व्हाट इज द सेकंड पार्ट एंड एंडिंग के लिए क्या चाहिए दोनों ट्रू चाहिए अगर एक भी फॉल्स है तो वैसे भी आपका पूरा रिजल्ट फॉल्स है So if the first is false, anyway the entire answer is false, it's not going to waste its time in checking the second part. That is what it's called short circuit. Means it moves from left to right direction and decides whether to move ahead or stop over there. वहीं disconnect करना है या आगे जाना है. Getting? So that is short circuit evaluation. Okay? Is it clear? ठीक है एंड अभी थोड़े देर पहले एक पॉइंट बताया था कि एक्चुअली ये ऑपरेटर्स ट्रू और फॉल्स लाके देते हैं बट कुछ केसेस में हमें वो ए या बी ही मिल जाए एज अ आंसर गेटिंग व्हेन दे आर नॉट ऑफ विच डेटा टाइप अगर ए एंड बी क्या डेटा टाइप के नहीं है बुलियन देन इन दैट केस व्हाट इट डज either it returns a only or it returns b only java doesn't do like that Java is a very strict language. Python follows the same rule. ठीक है? तो in this case, what it does is it will either return the last Truthi value if all are true. अगर सब true है, तो last Truthi value या पहला falsy value return करेगा. Last Truthi if all are true और first falsy value. कंसेप्ट समझ रहा है? लाइक यहां बताओ अगर मैंने लिखा है डबल कोट हाई एंड डबल कोट बाय लिखा है ठीक है ये बाय का स्पेलिंग अलग होता है ये बाय 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 कहने के लिए होता है ओके डिफरेंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट टू वी राइट बी आई अलग अलग है एंड ओनली बी वाई भी होता है राइट मैंने देखा इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे भी ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो सोचो कैसे टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स बनाने के लिए देते रहेंगे ठीक है ओके तो डबल कोट हाई एंड डबल कोट बाय इसमें डबल कोट हाई ये ट्रू कंसिडर किया जाएगा ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है ना या स्पेस नहीं है ये स्ट्रिंग है तो दिस इज ट्रू इंटरनली इट इज ट्रू राइट तो एंड है तो उसको आगे जाना पड़ेगा ये भी ट्रू है अब दोनों ट्रू आया तो अल्टीमेट आंसर ट्रू बट ये ट्रू नहीं देगा क्योंकि ये बुलियंस नहीं है तो इसमें से जो लास्ट त्रुटि वैल्यू है वो आ जाएगी हु इज द लास्ट त्रुटि वैल्यू बाय इट विल रिटर्न बाय तो एंडिंग में लास्ट त्रुटि वैल्यू और फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू अंडरस्टैंडिंग गाइस फर्स्ट फॉल्सी और लास्ट त्रुटि जैसे इसी केस में यहां बाय के जगह पे लिखा हुआ है 0 एंड फिर एंड और कुछ रहेगा ठीक है तो ये तो ट्रू था बट ये 0 है तो 0 इज फॉल्स तो इट विल रिटर्न द फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू वो 0 ही रिटर्न पहला फॉल्सी या एक तो लास्ट त्रुटि सब ट्रू है तो लास्ट ट्रू लास्ट त्रुटि वैल्यू और फर्स्ट फॉल्सी
ऑरिंग, अभी ऑरिंग में उल्टा है। अगर सब फॉल्स है तो लास्ट फॉल्सी वैल्यू या फर्स्ट त्रुटि वैल्यू, उल्टा है। पहला त्रुटि वैल्यू तो भी रिटर्न करेगा या लास्ट फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। एंड नॉट तो कॉम्प्लीमेंट करता है ना, जो भी आपका एक्सप्रेशन है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये ट्रू है तो उसका नॉट फॉल्स, फॉल्स का नॉट ट्रू। एंड जो नलिशिंग होता है, इट चेक्स ए, ये जो दो लिखे रहता है ना, तो इफ दिस इज कमिंग आउट टू बी फॉल्स, इट विल रिटर्न बी, अदरवाइज ए। अगर ए फॉल्स आ रहा है तो बी रिटर्न करता है, नहीं तो ए को रिटर्न करेगा। अंडरस्टैंडिंग? एसक्यूएल भी जिन्होंने पढ़ा रहेगा तो याद करो, जैसे माइस्क्यूएल में भी एक कोएलेस नाम का एक फंक्शन है जो भी अगेन दो वैल्यू लेता है और उसमें से जो पहला ट्रू है वो रिटर्न करेगा। तो अगर ए ट्रू है तो ट्रू रिटर्न, बट ये फॉल्स है तो फिर ये रिटर्न करेगा, राइट? लाइक दैट। सो आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन बुलियन एक्सप्रेशंस। दे रिटर्न बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। नॉर्मली ट्रू और फॉल्स ही वो रिटर्न करता है। ठीक है, और इफ द ऑपरेंड्स आर नॉट बुलियन, अगर ऑपरेंड्स बुलियन नहीं है तो वो ऑपरेंड की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ओके, और द एक्चुअल ऑपरेंड बेस्ड ऑन देयर त्रुटि और फॉल्सी नेचर। ठीक है, तो देखो ये टेबल दिया है, ये मैंने एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन लिखा ना गलती से, नो इट इज क्वेश्चन मार्क, राइट? सॉरी फॉर दैट गाइस। एंड, टू एंड, so when both are true the result is true. See here, logical and returns true if both the operands are true. बट अगर अज्यूम करो एक्स एंड वाई ट्रू नहीं है, कोई और डेटा टाइप है, तो क्या लाके देगा? एक तो लास्ट त्रुटि या पहला फॉल्सी, फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू और लास्ट वैल्यू इफ ऑल आर ट्रू। ठीक है, और रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू। अब इसमें भी बताओ क्या होगा, पहला त्रुटि या लास्ट फॉल्सी। ठीक है, नॉट, इट रिवर्सेस द बुलियन वैल्यू। लाइक एक्स ट्रू है तो उसका नॉट फॉल्स देगा, एक्स फॉल्स है तो उसका नॉट ट्रू। ऑलवेज है, यहां आउटकम हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रहेगा। वाई? बिकॉज इट विल कन्वर्ट दैट एक्स टू बुलियन। अब भी जस्ट नाउ हमने एम्प्टी अरे का देखा था, स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसको उसने ट्रू किया है, फिर ट्रू का नॉट फॉल्स दिया। एंड ये नलिशिंग, नलिश, और यू कैन कॉल इट एज कोएलेसिंग, कोएलेस, गेटिंग? तो रिटर्न्स राइट हैंड ऑपरेंड व्हेन द लेफ्ट हैंड इज नल और अनडिफाइंड। मींस अगर ये x नल आता है या अनडिफाइंड आता है तो y को रिटर्न, नहीं तो x को रिटर्न। अगर x नल नहीं है या अनडिफाइंड नहीं है तो x, बट अगर x नल या अनडिफाइंड है देन इट विल रिटर्न y। राइट वैल्यू इफ लेफ्ट इज नल और अनडिफाइंड, एल्स लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट मीन्स x। ठीक है, तो टेबल इज क्लियर। गिव मी क्विक कंफर्मेशन अबाउट ट्रुथ टेबल, फिर यहां भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ट्रुथ टेबल नहीं बोलना था, सॉरी, अबाउट द ऑपरेटर्स टेबल, वेरी सॉरी। ऑपरेटर्स टेबल क्लियर है? यस और नो गाइस? ए बी, if I make combinations like false false, false true, true false, please answer guys. Without communication it is difficult for me, for you. Not of a, not of a, so it is false. Will it give true, true, false, false? If I do ANDing, A and B, ठीक है, false, 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 true. Then when I do ORing, okay, so it will be false, then true, true, true.
Any one of them is true, the result is okay. Yes or no? Please, guys, quick confirmation. Yes, sir. At any point, if you have doubt, you can ask me. Maybe अभी थोड़े examples लेने के बाद आ जाए doubt. Correct? नहीं आया तो well and good. ठीक है? Which are the falsy values? That first we'll discuss, and everything other than that is true. Truthi value, falsy value. We call it like that. False obviously is false. And a Boolean literal false. This is a literal value false. 0 and minus 0. Getting empty string. Now, when we say empty string, means string with spaces also. String में spaces रहेगा तो भी check करो. Boolean of empty string. But see here, guys, Boolean of non-empty string, means string में space भी है, तो भी वो true नहीं लेता है. नंबर 0 लेगा. अच्छा हुआ ये करके दिखाया मैंने. ठीक है. अगर आपने इसका नंबर कन्वर्ट किया नंबर, then it is 0. And if I'm with space also I'm converting to number is 0, but not for boolean. ठीक है. Boolean of a empty string is false, but boolean of a string with spaces is true. क्योंकि वो string with length है ना, length कुछ तो length है इसको, तो वो true लिया जाएगा. ठीक है. तो प्लीज याद रखो, empty string is false, then null is false, undefined is false, nan is also treated as false. ठीक है. कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिखाता हूं क्विकली, जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स मेरे से पॉसिबल है उतने में दिखाऊंगा. नाउ बेसिक ट्रू एंड ट्रू. इज इट ट्रू? यस, बिकॉज बोथ आर ट्रू. एंड प्रायोरिटीज भी याद रखना है. एंडिंग इज हैविंग मोर प्रायोरिटी देन ऑरिंग, एंड दोनों से ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? और सॉरी, नॉट. नॉट इज हैविंग हाईएस्ट, यूनरी है, उसको सबसे ज्यादा, फिर एंडिंग, फिर ऑरिंग. ठीक है. एंड दिस से नलिशिंग एंड ये एक साथ नहीं यूज कर सकते. करना है तो ब्रैकेटिंग डालना पड़ेगा. आई शो यू दैट एग्जांपल आल्सो. नलिशिंग एंड लॉजिकल ऐसे एक साथ यूज किया, इट गिव्स अ सिंटैक्स एरर. बट इफ यू पुट अ ब्रैकेट अराउंड समवन, देन इट वर्क्स. अब देखो एंडिंग. एंडिंग में एक फॉल्स है, फॉल्स. देखो एक फॉल्स है, फॉल्स. अभी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन देखो. शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन में समझा ना, इट विल जस्ट इवैल्यूएट फ्रॉम लेफ्ट and then decide whether to proceed ahead or not. ठीक है. ऐसे A and B and C, तो ओनली A इवैल्यूएट करेगा. A के इवैल्यूएशन पे तय होगा B को जाना है कि नहीं. तो एंडिंग है, A अगर फॉल्स आ रहा है, इट विल नॉट इवैल्यूएट B. अगर A ट्रू आया, देन ओनली इट विल मूव अहेड. ओके. It will move ahead to B only when A comes true. In case of ending, and in case of ORing, opposite. If A come true, it will not go ahead. ठीक है. तो देखो 5 and 10, as both are true, it is going to give you the last truthy value. अब भी हमने टेबल पे लिखा था, याद है ना. इन केस ऑफ एंडिंग, either it gives first falsy value or last truthy value if all are true. So as both are true, is 5 true? Yes. Is 10 true? इंटरनली अगर इसका बुलियन कंसिडर किया, ये रूल के हिसाब से ये वैल्यूज के अलावा सारे वैल्यूज क्या है? ट्रू. 0 एंड माइनस 0, यही दो नंबर फॉल्स है, बाकी सारे नंबर ट्रू है. यस या नो? तो 5 ये इंटरनली ट्रू है, 10 ये इंटरनली ट्रू है. एंडिंग के लिए जब दोनों ट्रू आता है, अल्टीमेट रिजल्ट ट्रू. बट हियर इट विल नॉट गिव ट्रू, इट विल गिव यू द लास्ट ट्रूथी वैल्यू. So who is the last truthy value? 10. Therefore you get 10. ठीक है. See here. 10 and 20. Does it give last truthy value?
और फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू। लाइक जैसे अगर यहां लिखा जीरो, जीरो फॉल्स है तो आगे जाएगा ही नहीं, तो पहला फॉल्सी वैल्यू ही रिटर्न किया। ठीक है, देखो 0 and 10, 0 is false, it will not go ahead on the first falsy value. Null and hello, तो null ये क्या है, false है, तो पहला falsy value ये रिटर्न करेगा, that is null. Understanding guys? Double quote high and by, double quote high true, double quote by true, so last Truti value returns last Truti, and who is the last Truti value? By. चेक भी करके देखो। These all things are applicable only in scripting language, because scripting languages are nearly सारे scripting languages loosely typed होता है। Scripting languages means ऐसे languages जो किसी और के कंट्रोल में रन होते हैं, like your interpreter, जैसे ये JavaScript इंजन के कंट्रोल है, पाइथन उसके पाइथन इंटरप्रेटर के कंट्रोल में रन होता है। गेटिंग? तो नॉर्मली ये लैंग्वेजेस लूजली, पीएचपी भी उसके पीएचपी पार्सर उसको रन करता है। पीएचपी में भी ऐसे ही सिमिलर रूल्स है। ठीक है, चल फिर और इनका एग्जांपल दिखाता हूं। ट्रू और फॉल्स, पहला ट्रू है, डायरेक्ट ट्रू, और है ना अभी फॉल्स और ट्रू, तो पहला फॉल्स था इसलिए नेक्स्ट चेक किया, ये ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों फॉल्स है देखो फॉल्स। अभी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन देखो, 5 और 10, तो इसमें 5 ही ट्रू है, तो पहला त्रुटि वैल्यू ही रिटर्न करेगा, द फर्स्ट त्रुटि वैल्यू। 0 और 10, तो एक तो पहला त्रुटि इफ यू गेट फर्स्ट, एंड इफ ऑल आर फॉल्स तो फिर जो भी लास्ट त्रुटि होता है। तो देखो 0 इज फॉल्स, देयरफॉर रिटर्न्स 10। तो याद रखना है, व्हेन ऑल आर ट्रू इन एंडिंग इट रिटर्न्स द लास्ट त्रुटि, अदरवाइज फर्स्ट फॉल्स। एंड इसमें पहला ट्रुथ, पहला जो ट्रूथ है वो आ जाएगा, या फिर फॉल्स रहेगा, तो जहां पहला ट्रू मिलेगा वो, तो ये फॉल्स है इसलिए ये पहला ट्रू है, तो वो 10। अंडरस्टैंडिंग? नल, नल फॉल्स है तो और है ना, तो उसको अगला ट्रू है क्या देखना पड़ेगा, अगला हेलो ट्रू है इसलिए हेलो रिटर्न होगा। ठीक है, देखो प्लीज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एग्जांपल। इज इट गिविंग हेलो? यस, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज empty string and a string containing word default. Again, is empty string considered false? empty string ये false है, इसलिए फिर अगला true value, अगला default, ये empty string नहीं है इसलिए वो string आएगा, empty string is false. ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Coming to not true. Now, true, so not is false. Not a false is true. जीरो, जीरो ये इंटरनली क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स का नॉट ट्रू है। डबल कोड हेलो, ये ट्रू है ना, अभी हमने देखा ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, इट इज अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, therefore it is true, and true is not is false. Empty string is false, false not is true. ये डबल निगेशन हो रहा है, पहले 5 कितना है, ट्रू है, तो ट्रू का नॉट क्या बनेगा, फॉल्स, फॉल्स का नॉट क्या बनेगा, ट्रू। डबल निगेशन कन्वर्ट्स टू बुलियन। ओके, मुझे लगता है क्लियर है। अभी ऐसे एग्जाम्पल जहां दोनों को साथ में यूज किया, तो फिर ब्रैकेटिंग कैसे होता है, तो आपको पता है एंडिंग को ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो ब्रैकेटिंग इस पे जाएगा, तो फॉल्स और ये ब्रैकेट, इट इज गोइंग टू डू लाइक दैट, फॉल्स और एंड ये ब्रैकेट। तो ऑरिंग में अगर ये ट्रू रहता था तो वो डायरेक्टली ट्रू देता था, बट ये फॉल्स है इसलिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में एंडिंग,
बट एंडिंग में पहला ट्रू है, तो अगला ट्रू है कि नहीं देखना पड़ेगा, बट अगला फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट फॉल्स है। ब्रैकेटिंग किस पे लगेगा ये याद रखना, ये ब्रैकेट ऐसे नहीं लगाएगा, ब्रैकेट इन पे ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ज्यादा प्रेसिडेंस है, माने एंडिंग को ज्यादा प्रेसिडेंस है। तो एंडिंग को ज्यादा है तो वो उसके आसपास के दोनों को पास में लेके उनका ग्रुप बनाएगा। इट टेक्स द नियर टू एंड दे मेक देयर क्लब। वो अपनी ग्रुपबाजी कैसे करते हैं, तो उसके पहले वाला और उसके बाद वाला ये दोनों मिलके वो उनका अपना ग्रुप बना देते हैं। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। हाँ, अगर अज्यूम करो यहां ट्रू रहता था, तो ये ब्रैकेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये ब्रैकेट तो है बट ये ट्रू है ना, तो और में पहला ट्रू है, पूरा ट्रू, डायरेक्टली आंसर ट्रू आता है। ठीक है। इज इट गिविंग? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां अगर ट्रू रहता था तो आंसर ट्रू। क्यों? क्योंकि ब्रैकेटिंग इस पे चला, तो ट्रू और ब्रैकेट, तो ट्रू और ब्रैकेट में, और में पहला ही ट्रू है ना, तो ये ब्रैकेट का देखने का सवाल ही नहीं आता है। कैसे? शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। अब यहां बताओ, हियर ऑल्सो इज ब्रैकेटिंग अप्लाइड गाइस? जीरो और इन दोनों पे ब्रैकेट लगेगा या नहीं? तो ऑरिंग में पहला जीरो है, जीरो मीन्स फॉल्स है, और में पहला फॉल्स है तो अगला ट्रू है कि नहीं देखना पड़ेगा। एंडिंग अभी वन ट्रू है, तो आगे देखेगा टू भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, तो लास्ट त्रुटि वैल्यू क्या है? टू, इसलिए टू रिटर्न करता है। ठीक है। ओके। यस और नो? अब इस केस में बताओ ब्रैकेटिंग किस पे चलेगी? इस पे चलेगी ना, एंडिंग को ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो ये दोनों अपना ग्रुप करेंगे, तो ये ग्रुप और वर्ल्ड, तो और का पहला पार्ट तो इवेलुएट होना चाहिए ना, तो ये इवेलुएट करने के लिए पहले एंडिंग, तो एंडिंग में पहला एम्प्टी है तो फॉल्स, पूरा फॉल्स होगा। एंडिंग में पहला एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग इज फॉल्स, तो ये आगे का हेलो क्या है वो देखने की भी जरूरत नहीं, एंडिंग में पहला फॉल्स पूरा फॉल्स। ठीक है, ये पूरा फॉल्स है, तो और रिंग में अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है कि नहीं देखना पड़ेगा ना उसको, तो सेकंड पार्ट क्या है? वर्ल्ड, वर्ल्ड तो ट्रू है, इसलिए वो वैल्यू रिटर्न की। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. कीप इंटरैक्टिंग। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि अगर आप ये लॉजिकल एंड ये नलिशिंग एक साथ यूज करते हैं ना, तो इट गिव्स यू एन एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर देता है, तो इसको आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, मीन्स आपको अलग सा नलिशिंग चाहिए तो ये एक ऐसे डालो और ये, ठीक है, या फिर ये पूरा डाल दो, बट इसको ब्रैकेटिंग किए बिना ये वर्क नहीं होता है, अदरवाइज इट गिव्स यू एरर। सी, आई शो यू। ठीक है, क्या लिखा था? नल और अनडिफाइंड, ठीक है, एंड नलिशिंग एंड सम स्ट्रिंग इज देयर, डिफॉल्ट। अभी नलिशिंग का बिहेवियर याद है ना? नलिशिंग क्या करता है, अगर पहला ऑपरेंड नल या अनडिफाइंड आया तो सेकंड को रिटर्न करेगा, नहीं तो जो पहला है वो ही रिटर्न करेगा। इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज नल और अनडिफाइंड, नल और अनडिफाइंड, देन इट विल रिटर्न व्हाट? द सेकंड ऑपरेंड। अदरवाइज जो पहला ऑपरेंड है वो ही रिटर्न करेगा, बट इस केस में ये सिंटैक्स एरर देगा। तो एक तो इंटेंशन हमारा ये था, यहां नलिशिंग का इंटेंशन क्या था, ये देखना था कि पहला नल या अनडिफाइंड है क्या। यस, तो फिर दूसरे को रिटर्न कर,
अगर मैंने यहां ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है, तो डज इट रिटर्न डिफॉल्ट? अभी क्यों डिफॉल्ट कर रहा है? क्योंकि आपने इस पे ब्रैकेट डाल दिया, तो पहला ऑपरेंड अगर नल और अनडिफाइंड है तो वो सेकंड ऑपरेंड देता है ना। नलिशिंग का वही तो मीनिंग है ना, coalesce, getting coalescing, meaning if the left hand is null or undefined, return the right hand. Otherwise, return that first operand. ठीक है, तो इसमें बताओ ना, ये null और undefined, इसका अल्टीमेट वैल्यू कौन सा आएगा? अनडिफाइंड ही आएगा ना गाइस, क्योंकि null तो false है, अनडिफाइंड भी false है, तो लास्ट false कौन? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आया इसलिए उसने राइट ऑपरेंड रिटर्न किया। ठीक है, एंड अगर ब्रैकेटिंग ऐसे किया रहता था तो इधर ब्रैकेटिंग डाला रहता। तो व्हाट डू यू से गाइस? फिर भी एरर तो नहीं आएगा, करेक्ट? तो अभी क्यों? क्योंकि नल मीन्स फॉल्स, और ये नलिशिंग ऑपरेटर है, तो नलिशिंग में क्या कहते हैं, अगर पहला अनडिफाइंड या नल है तो गिव सेकंड, तो सेकंड इज डिफॉल्ट, तो वही आ गया। तो अल्टीमेटली यू गेट द सेम। ठीक है, ओके, यस और नो? इन दिस केस ऑल्सो टेल मी क्विकली, एक दो और एग्जांपल्स क्विकली टू वाइंड अप विद द सेशन, so that next time we have to start with control flow and all. एंडिंग है, अब देखो दोनों एंड है, तो दोनों एंड है तो एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, इनका प्रेसिडेंस सेम है ना, ब्रैकेटिंग। मैंने पहले ये दो चलेगा, एंड फिर इसका जो भी आंसर है वो एंड ये। ठीक है, तो इसमें बताओ ये ट्रू है और ये जीरो फॉल्स है, तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आया? जीरो। बट एंडिंग में अगर पहला फॉल्स है तो आगे देखेगा भी नहीं ना, तो जो पहला फॉल्स है वो ही रिटर्न करेगा, दैट इज जीरो। डू यू एग्री? एंडिंग में मैंने क्या कहा था? फर्स्ट फॉल्सी और लास्ट ट्रुथी, इफ ऑल आर ट्रू लास्ट ट्रुथी, अदरवाइज जो पहला फॉल्स है वो रिटर्न करेगा, और इसका ऑपोजिट ऑरिंग के लिए। ठीक है, यहां देखो ये फॉल्स बुलियन वैल्यू नहीं है, ये बुलियन लिटरल फॉल्स नहीं, ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ फॉल्स है, इसलिए ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग का बुलियन क्या बनेगा? फॉल्स, एंड फॉल्स का नॉट वापस क्या बनेगा? ट्रू। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अगेन इस केस में एरर है कि नहीं? सिंटैक्स एरर सेम जो इधर प्रॉब्लम था, नलिशिंग एंड लॉजिकल, यू कैन नॉट यूज इट एट अ टाइम, यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट। एक तो ऐसे ब्रैकेट डालो या यहां ब्रैकेट डालो। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये ब्रैकेट डाल दिया तो क्या आएगा? लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, यू विल टेल मी क्विकली, क्विकली, जितना जल्दी बताओगे जल्दी वाइंड अप होगा। विल इट डू नलिशिंग ऑपरेशन? नलिशिंग का क्या समझ में है आपको? क्या बताया था? नलिशिंग या कोएलेस? ठीक है, अगर ए नल या अनडिफाइंड है, if A is null or undefined, it returns B. Otherwise, whatever A is. So tell me in this case what it will return. Will it return 5 or 0 only? Think again. Zero. Because 0 is not what? Null. Null. Null भी नहीं है and undefined भी नहीं है ना? अगर वो null या undefined होता था तो 5 रिटर्न करेगा, बट 0 0 है, नंबर है, वो थोड़ी null या undefined है।
सो इसलिए मैंने कहा थिंक अगेन, इसलिए पर्पसली डाला हुआ एग्जांपल है। तो 5 नहीं आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। एंड 0 और 10 रूल, प्लीज नलिशिंग का रूल क्या याद रखो, ए ये सिर्फ दो में से होना चाहिए, क्या, अनडिफाइंड और नल। अगर ए अनडिफाइंड या नल है, देन इट विल रिटर्न बी, otherwise it will return A. So in this case, this was 0. So is it undefined or null? No, it is 0. 0 ही रिटर्न करेगा। फिर 0 और 10, अभी 0 तो फॉल्स होता है, तो 10, 10 ट्रू है तो वो 10 रिटर्न करेगा। अभी सिंटैक्स एरर है, बट अगर वैसे लिखा तो देखो, ऐसे लिखा और 10, it gives a syntax error. But if I put it in a bracket, does it print 10? And if I'm putting bracket here, guys, what do you say, guys? Will it even go and check 5 or 10? ये 5 और 10 चेक भी करेगा या नहीं? जरूरत ही नहीं है ना, यू डोंट आंसर क्विकली। ठीक है, इसको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अभी नलिशिंग का काम कर रहा है, तो पहला ऑपरेंड ही देखेगा। इज योर फर्स्ट ऑपरेंड अनडिफाइंड और नल? नन ऑफ देम। No. तो वो वही रिटर्न करेगा, तो ऐसे केस में इधर आता भी नहीं है। तो कैसे इवैल्यूएशन से वो देखो इसके केयरफुली। ठीक है। ओके, फ्यू मोर एग्जांपल्स आर देयर, बट दैट वी विल सी, फ्यू थोड़े से है, वो अगले सेशन में देखेंगे। एंड फिर हमें कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस को शुरू करना है। ठीक है गाइस, जिसमें इफ एल्स, स्विच केस एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी लर्निंग।